Okay. So now can you read, Tushita, first third question? Multiplying by 0.1 is the same as dividing by, can you tell me? Are you there, Tushita? Yes, ma'am. 1 second, ma'am. See, multiplying by 0.1 is same as dividing by. 0.1 means what? You are multiplying by 1 upon 10. So 1 upon 10 means what? Basically you are dividing by 100, 100. by 10, by 10. So the multiplying by 0.1 is the same as dividing by 10. Okay. Dividing by 0.1 is the same as multiplying by what? So dividing by 10. 0.1 means what? Dividing by 1 upon 10. So you cannot do divide by 10, 1 upon 10. So you are doing multiplying by 10 because you have to do reciprocal. So it will become 10 upon 1. So 10 upon 1 means basically you are doing multiplying by 10. Multiplying by 0.01 means it is 1 upon 100. So then it is meaning divided by 100. So you understood this concept? Yes, ma'am. Now Harpal has done two calculations. So now what is the mistake here? In A, 0.1 into 0.1 he is writing 8 into 1 is 8. So it is completely wrong. 0.8 is a decimal number and 8 is a whole number. So how you can write this 8 and 1? Okay. And 0.8, if you want to write the correct answer, you can write 0.8 as 8 upon 10 and 0.1 as 1 upon 10. So when you multiply 8 upon 10 and 1 upon 10, so it is 8 upon 10 multiplied by 1 upon 10. So your answer will be 8 upon 100 and not 8. He is giving 8. So 8 is wrong. So 8 Okay. upon 100 means it is 0.08. Okay, because this was 0.8 multiplied by 0.1. Did you understand? Yes, ma'am. Understand. हाँ आयान, मैं फिर से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी सब आ गए हैं तो तभी हमने वर्बली किया था, हम वर्ब लिख के कर रहे हैं. 0. प्रिया क्वेश्चन बोलोगी जरा. 0.05 डिवाइड बाय 0.01. Okay, I will take a pic of this. Okay, so the next question is 0.5 divide by 0.01 and इस लिखा है 0.5 divide by 1 upon 100. So this is correct. Till here he is correct. Then he wrote 1 upon 0.5 multiply by 100. So this is wrong. इसका next step क्या होगा? 0.5 instead of division you have to write multiply 100 upon 1. So 100 upon 1 means what? 0.5 just multiply by 100. So when you are multiplying by 100 the point shifts right. So write how many times? 2 times. 1 and 2. So then a point, this point instead of here it will be here and there is a gap here. So it will be 050 point. So that is 50. Okay. So the correct answer is 50. 0.50 के बाद ये point है means answer is 50. 50.00. So 50.00 means is 50. Okay, understood all of you? Yes, ma'am. Yeah. So this I gave you homework, but I am just discussing the right answers. Now next was 4.4 multiplied by something gives you 0.4. Okay. So if you say 4 point multiply by 10 तो 40 हो जाएगा. But अगर आप 4 multiply by 1 upon 10 लिखती हो तो what is this? 4 upon 10
which is 0.4. So multiply by 1/10. But 1/10 नहीं लिखना है, हमको डेसिमल में लिखना है. So instead of 1/10 you have to write 0.1. Correct? So this is your A. Now B is 1.2 multiplied by something is giving you 0.12. Okay, so now where is the point? The point is shifting to left. ये point यहाँ पर आ गया है. So shifting to left means what? 1.2 must be divided by, it is going left one time. So that means it is divided by 10. Okay, divided by 10 means what? 1/10 multiplied by 1/10. So 1/10 means 0.1. So this is your answer. Understood? Tushita, did you understand? Yes, ma'am. हाँ. राघव, आयान समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम. हाँ. 7.8 multiplied by something is giving you 0.078. So now 7.8, if the answer is shifting, the point is shifted from here, this point is shifted one time and two times. Okay, so point is here and you got a 0, so that means you are shifting two times. So shifting two times means what? This number 7.8 is divided by 100. So divided by 100 means what? Nothing but 7.8 multiplied by 1/100. Then only you do 7.8 divide by 100. So what is this 1/100? 1/100 will 0.01. Understood? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now next question is, so you have to see where the point is shifting. 9 divided by something is giving you 90. Now the answer is 90. That means you are multiplying something so that you get 90, because but here it is given divide. So 99 कब बनेगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एनी नंबर से, तो वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10. बट व्हाट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10? इफ यू वांट टू राइट इन डिवीजन, so what you will write? 9 divide by 1/10. Okay, so what will happen? You cannot do this, so you will write 9 multiplied by 10/1. So what is this? Answer is 90. Okay, so what you did? 9 divide by 1/10. So instead of writing 1/10, you will write 0.1. Okay, the next is 6.2 divide by something is giving you 620. Now again 6.2 has become 620. मतलब ये point is shifting one time and two time. Then only this point is coming here instead of here and ये 0 आ गया, तो आपको आंसर आएगा 620. So when you will multiply, when the point will shift right two times, when 6.2 is multiplied by 100, then only the point will shift. But here it is given division. So what is division? 6.2, ये 100 कब बनेगा? अगर मल्टीप्लाई करना है तो, और अगर डिवाइड करना है तो when you will write उल्टा, तो 1/100. तभी हम 6.2 मल्टीप्लाई बाय 100/1 लिखेंगे, विच इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. तो हमने किससे डिवाइड किया? 1/100 से. तो 1/100 मीन्स 0.01. देन ओनली यू विल गेट आंसर एट 620. प्रिया, आप मैच कर रही हो ना आंसर्स आपके? Now what is the next last question was?
something divided by 0.01 is giving you 4.85. Okay. Now divide by 0.1 मतलब divide by 1/100. ओके, तो आप क्या डिवाइड बाय करोगे तो आपको आंसर आएगा 4.85. ओके, अब 4.85 है मतलब क्या, नंबर तो 485 ही होगा. तो 485, इफ यू टेक 485 सपोज, अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 485 ही लेकर देखो. सो 485 डिवाइड बाय 1 मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100. करेक्ट. So when you multiply this, what it will become, 48500. But my answer is 4.85. That means 485 में ये नंबर आ गया है, ये पॉइंट आ गया है. That means 485 instead of multiply, this is 485 divide by 100. Then only you will get answer as 4.85. Okay. So 485 divided by 100 is equal to 485, 4.85. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 0.01. तो ये 4 हमको इससे आ रहा है, बट हमको अगर और उससे डिवाइड कर रहा है 1/100 से, तो ये पॉइंट हमारा राइट में शिफ्ट होएगा, तो ये 4.85 बनेगा. तो दैट मीन्स योर आंसर इज 0.0485. अंडरस्टूड. सो अगर अभी हम इसको करेंगे 0.0485 डिवाइड बाय दिस मीन्स डिवाइड बाय 1/100. तो 0.0485 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये जो पॉइंट है 100 का, जो शिफ्ट 1 and 2, so what you will get, 4.85. correct. So answer is 0.0485. what is this division by 0.1 मतलब 1/100. so what is division of 1/100 means basically you are multiplying by 100. तो आप क्या नंबर को मल्टीप्लाई 100 किया तो आपको ये आएगा. तो मल्टीप्लाई 100 मीन्स क्या, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ. ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट हुआ मतलब वो पहले तो 1 और 2 यहाँ होना चाहिए. तो ये 0.045, इसलिए मैंने आंसर लिखा 0.0485. अंडरस्टूड. दिस इज लिटिल ट्रिकी बट यू कैन डू लॉजिकली. अंडरस्टूड. के वापस एक्सप्लेन करूँ, तुषिता, रिया, प्रिया, सॉरी. Ma'am, I understood. व्हाट अबाउट आयान? I understood, Ayan? ma'am. Yes, I Yes. understood. राघव? Raghav, again today you are not answering me, bacha. How I will understand whether you are following? So the next question is 451 multiply by 0.1. Okay. So this is what is your answer they are asking you. So this is 451 multiply by 0.1 means what? 1/10. You can add 0.1 as 1/10. So now 451 multiply by 1 is 451 and divide by 10. So basically 0.1 means you have to multiply by 10. So multiply by 10 means what? You will have a answer, a 0 in that. Okay. So understood? No, it is, sorry, divide by 10, not multiply. So when it is multiply by 0.1 means basically you are dividing by 100 by 10. See, I am explaining you again. 451 multiply by 0.1 means 451 multiply by
1/100. तो 451/10. तो 451/10 मीन्स आंसर हो जाएगा 45.1. तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर ये मल्टीप्लाई बाय 0.1 है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10 करना है. क्या करना है, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई, करेक्ट. यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई बाय 0.1. तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे डिवाइड बाय 10 करना है. तो 451 डिवाइड बाय 10. सो आंसर इज 45.1. तो ये अगर आप बाय हार्ट करोगे तो समटाइम्स भूल जाओगे. So instead of that, you should know what is the method. So this is 0.1 means 1/10. So 1/10 means we are dividing by 10. Divide by 10 means you will get answer 45.1. Ma'am, Yes. ma'am, but it is saying to multiply, then why are we dividing? ये कौन पूछा? राघव. हाँ मैम, राघव पूछा. Multiplying by 0.1 है तो what is 0.1? Multiply by 1/10. Okay, 0.1 you can write as 1/10. So what you are doing here, हमने फ्रैक्शन किया है ना, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. तो आपको क्या मिला? 451/10. तो अपॉन 10 मीन्स व्हाट? यू आर डिवाइडिंग ना, दैट्स व्हाई आई रोट व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 0.1 वी हैव टू डिवाइड बाय 10. ओके राघव. Yeah. और अगर ऐसे ही आपको याद नहीं रखना है डिवाइड बाय 10, ऐसे करके देखो, इजी हो जाता है. एनीवेज यू विल डू, बट दिस विल टेक टाइम. तो अगर आपको याद रहता है कि मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 10, तो बट याद रखने से बेटे कॉन्सेप्ट समझो. ओके, इट इज 1/10. तो 1/10 मीन्स व्हाट? बेसिकली यू आर डिवाइडिंग 451 by 10, because when you do this 451 multiply by 1/10, so this multiply by this and this multiply by this, but here nothing means it is 1. तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 451/10. तो ये अपॉन मीन्स क्या होता है? डिवाइड होता है ना, इसीलिए टीचर ने लिखा डिवाइड बाय 10. तो आप अगर आपको ऐसे याद रहता है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 10 मीन्स जस्ट पॉइंट डाल दो तो आपको आंसर आ गया. ठीक है. Now next question is, अच्छा अब आगे पूछा था ऐसे 451 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाइड बाय 0.01. ठीक है, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट वी गॉट दिस 451 मल्टीप्लाई बाय 0.1 we got as 45.1, correct? So this should be equal to this. So now what multiply by 0.01 will give you 45.1. Okay, now multiply by this is divide by 10. So this is what? Divide by 100. Okay, तो आप कौन सा नंबर को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको आंसर यही आना चाहिए. तो 4510 अगर डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हमको क्या आंसर आता है? 45.1 ही आता है. Understood? So when we do this, what you will get? 45.1. So what is the answer here? 4510 multiply by 0.01 will be equal to 451 multiply by 0.1. Did you understand? Yes. समझ में आ गया प्रिया? तुषिता, did you understand? तुषिता, तुषिता, आयान,
आयान, मैम मुझे समझ में आ गया। हाँ तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो बच्चा? मैम सॉरी, गलती से अनम्यूट नहीं हो रहा था। अभी आप अनम्यूट करो ही मत, फिर नहीं होगा वो, म्यूट पे हेलो। जाओ मत। हाँ तुषिता, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. व्हाई आर नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्ड बच्चा? I couldn't unmute myself. I was trying to click on it, but it wasn't happening. No, So the now screen got locked. Actually, tell me the ma'am, answer. on the phone on Meet, I can't find the screen. One second. One second. Oh my god. It went on home. Like, can you hear me, ma'am? I can hear you. Even I can hear you, but I can't see the screen. It's Priya, showing. you can see? It's Priya, you can see the screen? Yes, ma'am, I can see ma'am, this. on the phone. That's me. Like, I don't know how to use this on the phone. That's why I'm having a revelation. Yeah, चलो now I आयान, can see. हाँ आयान, give me the second answer. और तुषिता, can you give me the second answer? मैम should I give? Yes, आयान. 5600। ओ रुको रुको रुको, मैं बोलता हूँ। 5600 This equals 560 divided by 56,000। 56, 566 फिर divided क्या by है? 1 रुको upon मैं 100. बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, रुको। हाँ बोलो बोलो. 5600. 5600। हाँ तो अभी आपको 5600, आप किसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको 5600 ही आएगा. It क्या is चीज? 56. Correct? हाँ So your answer is 56. Understood? यस Because मैम। when you Yes, divide this number, you are getting 5600. So 5600 means 56 multiplied by 100. So आपको ये पूछा Hello, है. ma'am. Yes, I Tushita. need to leave the meeting now. I have to go like for my. But have you okay? You see the recording then. Yeah, ma'am. I have to leave the meeting now. I said. Okay, but I said you will see the recording. Yes, ma'am. Okay, bye Okay. Bye, ma'am. and all the best. चलो, what about next sum? प्रिया बताओ. Next sum, third sum. 38 multiplied by 0.01 is equal to dash multiply by 10. तो चलो फिर बताओ. हम लोग जब 38 को 0.01 से करेंगे तो मतलब हमको 38 100 से डिवाइड करना है, तो 0.38 हो जाएगा. 38 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.38. और करेक्ट. फिर हमको आंसर चाहिए 0.38. तो अगर हम लोग मीन्स ये जो पॉइंट है, अगर हम ये लोग 3.8 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 38 आ जाएगा. क्यों 3.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो 38 आएगा. बट हमको 38 नहीं चाहिए, 0.38 चाहिए. सही है. हाँ 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 हाँ. तो तो ये फिर ये पॉइंट एज्यूम करो कि ये पॉइंट इधर है. हाँ, तो 0.03 है. हाँ, तो ये ऐसा होगा आंसर. तभी हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा. तो 0.38 आएगा, तभी मैच होगा ना. हाँ. तो फिर आंसर क्या हुआ? 0.03. करेक्ट? अंडरस्टूड? यस. आया, समझ में आया? हाँ मैम। व्हाट अबाउट राघव? राघव? हाँ. हाँ, ओके. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? अभी राघव देगा आंसर. चलो राघव. 6.2 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एंड इट इज डिवाइड बाय 0.01. चलो तो पहले ये सॉल्व करो. दिस इज 6.2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 10. Yeah.
तो So it will 6.2 be मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6, ये मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 62। 62. तो आपको 62 आंसर का क्या नंबर से आप डिवाइड करोगे 0.01 को, तो आपको 62 मिलना चाहिए। तो 62 आंसर है, मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो बोलो 62 क्या हम डिवाइड करेंगे, तो आप 0.01 को 1/100 ले लो, डिवाइड बाय 1/100, करेक्ट। अब डिवाइड बाय 1/100 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100 लो। तो आप क्या चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 62। 620. 620 कैसे आएगा, नहीं 620 को तो आप 6200. तो उसको तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो और जीरोस बढ़ जाएंगे। आपको समझा कि नहीं क्वेश्चन? अब क्या मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपका आंसर आना चाहिए 62। समझ में आया? डिवाइड बाय 0.01, हाँ, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई, 0.62. हाँ, 0 आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको ये समझना है कि 62 पॉइंट यहाँ शिफ्ट होने के बाद 62 बना है। तो ये पॉइंट इधर और इधर, मतलब ये पॉइंट इधर था, तो आंसर क्या है 0.6। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये पॉइंट शिफ्ट होके 1 2 तो 62 बनेगा, ठीक है। तो आंसर है 0.62 डिवाइड बाय 0.01 विच इज 62। अंडरस्टूड? Yeah. समझ में आया ना? Yes. डिवाइड बाय, हाँ, ये डिवाइड बाय 0.01 है, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 100, इसीलिए समझ लो इट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप क्या चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 62। तो 0.262 मल्टीप्लाई 100 विल गिव यू 62, therefore आंसर इज 0.62। चलो प्रिया, नेक्स्ट सम। 0.057 divide by 0.01 is equal to something divided by 100 है। अभी पॉइंट नहीं है, इट इज 100, बट ये क्या होगा 0.057 डिवाइड बाय 1/100, that means it is 0.057 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट मीन्स ये पॉइंट आपका शिफ्ट होगा 1 2, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा 005.7, तो आंसर है 0 पॉइंट, करेक्ट। Yes. तो आप क्या क्या नंबर को डिवाइड करोगे 100 से, तो आपको ये नंबर आएगा 570. कितना 570. 570। तो 570 को आप जब 100 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 5.7, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ. दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड। एनी इश्यूज? No. अयान? नो। चलो राघव, एनी इशू बच्चा? टेल मी। अंडरस्टूड क्लियरली कि हम डिवाइड है तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? हाँ. चलो अभी लॉज हम वापस से एक बार रिवाइज करें, लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके मैम। ये आपकी नोटबुक में लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से लिखो, तो आप सिर्फ इसको रिफ़र किया ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ दैट।
चलो, सो बोलो फर्स्ट लॉ क्या है? If it is 3 raised to the power of 2 multiply by 3 raised to the power of 2, और हम इसको लेंगे 3 raised to the power of 3, okay, 3 raised to the power of 5. So when you have to add powers, correct? When it is multiplication. तो ये एक हो गया. Second, if it is 3 raised to the power of 5 divide by 3 raised to the power of 2, okay, क्या कर रहे हैं? Divide. So this can be written as 3 raised to the power of 5 upon 3 raised to the power of 2. ऐसे भी लिख सकते हैं. So what will be the answer? 3 raised to the power of 3. What you are doing here? Subtracting. Subtract the power. Okay. Now third. Three raised to the power of 0. Answer is 1. Okay. When the power is 0, answer is always 1. Okay. समझ में आया? अब फोर्थ क्या है? फोर्थ रूल बोलो. 3 raised to the power of 2, the whole raised to the power of 3, then 3 raised to the power of 6. You have to multiply the two powers. Okay? इतना लिख लिया सबने? हाँ मैम लिख लिया. दिखाओ प्रिया. ओके मैम. एक कैसे लिखा दिखाओ. थोड़ा ये साइड करो, तुम्हारे लेफ्ट में. हाँ, बट छोटा छोटा क्यों लिखा? और वो आपने वो नहीं लिखा, उसका रीज़न जो मैंने दिया वो भी लिखो. क्यों आया वो आंसर? जैसे मैंने लिखा वैसे ब्रैकेट्स का भी लिखो, नहीं तो भूल जाओगी. ब्रैकेट्स का भी लिखो. आयान शो करो बच्चा. मैम मैं अभी तो लिख रहा हूँ, 2 मिनट रुको. मैम आप आया. अपना स्क्रीन शेयर बंद करोगे एक बार? राघव एंड प्रिया, थोड़ा खुला खुला लिखो, बहुत कंजेस्टेड मत लिखो. इतनी बड़ी बुक है ना, थोड़ा खोल के लिखो. मल्टीप्लाई जो साइन है, डिवाइड का साइन है, एकदम खिचड़ी मत लिखो. मैंने कैसे लिखा है बड़ा बड़ा. बहुत कंजेस्टेड नहीं लिखना है कोई भी चीज़. मैम यस, मैम मैंने ऐसे लिखा है. दिखाओ. मुझे तुम नहीं दिख रहे, प्रिया दिख मतलब रही है. मैं ओ सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ है. मेरा भी ऑफ है, मैंने भी भूल गई. चलो, हाँ दिखाओ, सही से पकड़ो, आगे लाओ थोड़ा. मैम मैंने x को वेरिएबल डाला है. हाँ वो कोई बात नहीं, बट थोड़ा ये साइड लो, टुवर्ड्स योर राइट. और राइट पे जाओ. थोड़ा आगे आओ ना, पीछे कहाँ जा रहे हो? आगे आओ. और हाँ, एक्स डिवाइड बाय आपने क्या लिखा? a माइनस बी. हाँ मैंने ऊपर लिखा. किया है x a डिवाइड बाय x b इक्वल्स x a माइनस b. हाँ ओके ठीक है. तो आपने मेरे स्टाइल से नहीं लिखा, अपने स्टाइल से लिखा है. हाँ तो वो थोड़ा सा चलता है ना और, मैम, वो करेक्ट बट है ना?
हाँ, ये तो मैं आपको याद रखने के लिए आपको बोल रही हूँ ये, बट अगर नंबर होगा तो फिर आपको आंसर 3/3 आएगा ना, ये वाला। हाँ मैम। मैं अभी वेरिएबल लिया है इसीलिए। ठीक है, अभी राघव आपका दिखाओ बच्चा, ऑन योर कैमरा एंड शो मी राघव। Yeah, wait, ma'am. मैम मैंने बड़ा करके लिखा अभी। हाँ, व्हेन यू राइट बड़ा ना क्लियरली दिखता है तो वो अपने ब्रेन में भी वो रजिस्टर अच्छे से होता है। कंजेस्टेड लिखोगे तो सब कंजेस्टेड ही लगेगा। मुझे नहीं दिख रहा है प्रिया। हाँ गुड, हाँ ठीक है, करेक्ट। तो अभी आपको दिख रहा है ना आपने क्या लिखा है, और वो एक ही इंस्टेंट में दिखता है। कंजेस्टेड नहीं लिखना है कभी भी, ठीक है। उतनी ही जगह जाने वाली है, सेव पेपर करोगे बट उतनी जगह तो जाएगी ना। चलो राघव, व्हाट हैपेंड? Raghav, are you showing? Raghav? So we are moving to next. Okay, but suppose अगर आपका है पावर a raised to the power of 9 divide by a raised to the power of 12, तब क्या आंसर आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ, तो a raised to the power of 9 minus 12. So 9 minus 12 means a raised to the power of -3. करेक्ट, बट ये पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो नेगेटिव पावर नहीं होता है, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम a को क्या करेंगे? नीचे ले लेंगे, तो लिखेंगे 1a/3। तो ये क्या हुआ? -3 विल बिकम 3। ओके, तो लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1a/3। सो दिस इज द रूल। इफ इट इज b6/b9 या 8, तो इट विल बी b6 minus 8 which is b⁻²। so we cannot write -2 as power, so I have to write 1b/। ओके, तो ये भी एक रूल है। ठीक है, अब कभी कभी आपको सम ऐसे आएंगे कि 3 + 2 ओके द होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले आप ब्रैकेट का सॉल्व करोगे 5⁻²। सो आंसर आएगा 25। करेक्ट। सो व्हेन इट इज प्लस, ये दोनों को प्लस करके 5⁻²। ओके, इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि ये पावर जो 2 है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर ये 3 × 2 है तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो 2 पावर है ये 3 को भी है और ये 2 को भी है। तो 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 2⁻²। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9, और इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो 9 4 का कितना हो गया? 36। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 36। और अगर इसको आप 3 2 6 करके उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 36। ओके, तो इसीलिए हम जब मल्टीप्लिकेशन है तभी भी आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो और कर दो। बट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लस साइन में, ये वाले में, ऐड में ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐड में आप ये बोलेंगे कि ये इसको भी पावर है और इसको भी पावर है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर होता है 9 और
ये होता है 4, तो ये आंसर क्या होना चाहिए था 13, बट 13 इज नॉट द करेक्ट आंसर। जब प्लस साइन है ओके एंड रेज टू द पावर है, मतलब ब्रैकेट में है और ये रेज टू द पावर ऑफ 2 है, तो हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और 5 लिख के उसका स्क्वायर करना है, इंडिविजुअल का नहीं करना है। तो आंसर आएगा 25। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर 36 आएगा, और डायरेक्टली लिखोगे तो भी आंसर 36 आएगा। समझ में आया डिफरेंस? Yes. ओके, समझ में आया डिफरेंस? जैसे कि अगर हम ये आपको बेस्ट कैसे समझ में आएगा, अगर आप समझो लिख रहे हो ए बी ओके द होल स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप ए को भी 2 का है और इसको भी 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बट ए प्लस बी है और होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर डिफरेंट होता है। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आपने सीखा नहीं है, ये आपको आएगा बाद में 8th में। तो इसीलिए जब मल्टीप्लिकेशन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट जब एडिशन होगा तो यू कांट राइट लाइक दिस, तो उसका आंसर ऐसा होता है। इसीलिए जब एडिशन होता है तो हम लोग को ये आंसर ऐसे, अगर आपको कंफ्यूजन के लिए पूछा भी तो आपको ये आंसर ऐसे ही लिखना है कि इसका आंसर यही आएगा। मैम मैंने कल सीखा कि अगर a प्लस ब्रैकेट्स में लिखा होगा तो हम लोग को पहले आंसर को सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 2 के पावर से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, वो सेम चीज सेम से मल्टीप्लाई, उसको 2 पावर बोलते हैं। मिस फिर a पावर ऑफ 2 प्लस b पावर ऑफ 2 होगा। कौन सा? ये नहीं, वही बोल रही हूँ, ये नहीं होगा ऐसा। व्हेन इट इज मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा लिख सकते हैं, बट इसमें आपको आंसर यही आंसर लिखना है। डोंट राइट दिस, वो कंफ्यूजन के लिए आपको दे सकते हैं, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, राइट इन इंडेक्स फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, बस ए बी द होल रेज टू 2। ओके, बट अगर वो a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, सेम ही लिख देने का, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर नहीं दिया है। बट अगर नंबर दिया है 7 प्लस 3 द होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 10 द होल स्क्वायर विच इज 100। यहाँ तो हमको a और b दिया है तो हमको मालूम नहीं हम किसको प्लस करें, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। समझ में आ गया? और अगर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 द होल स्क्वायर है तभी भी क्या होगा 10 द होल स्क्वायर विच इज 100। अंडरस्टूड? Yes. ओके, और हमको अगर ऐसे पूछा है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट, तो इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल फॉर नेगेटिव नंबर्स, करेक्ट? so negative numbers have no square root, square root is not possible। एंड अगर आपको पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो आपको क्या लिखना है, प्लस एंड माइनस 8, क्योंकि प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 8 इज ऑल्सो 64 एंड माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 इज ऑल्सो 64। देखो जब भी स्क्वायर रूट होगा तो आपको प्लस और माइनस दोनों आंसर होते हैं, बट अगर वो क्यूब रूट है, अब क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है 4, ओके, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 are 16, 16 4 are 64, so therefore cube root of 64 is one of this number,
तो ये 3 में से हम एक लेंगे तो वो 4 ही आएगा. तो क्यूब रूट ऑफ 64 is 64, बट क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा? -4. ठीक है. तो यहाँ पर 2 आंसर नहीं लिखने, यहाँ पर अब प्लस माइनस लिख दिया तो यू आर रॉन्ग. ठीक है. यहाँ पर अगर प्लस माइनस प्लस ऐसा नहीं करते ना हम, -4 -4 -4, तो -4 प्लस 64 16, और 16 के बाद वापस -4 किया तो नेगेटिव आंसर आएगा. अगर ये तीनों प्लस है तो ये आंसर +64 होगा, और अगर अपने को माइनस चाहिए तो -4 होगा, क्योंकि -4 इंटू -4 इंटू -4, so this will be +64 and then -64. तो क्यूब रूट में अगर माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, प्लस है तो +4 आएगा. ओके, बट यू कैन नॉट राइट आंसर एज प्लस और माइनस. either it will be plus or either it will be minus, but in square root the answer can be plus or minus. So you understood the difference between cube root and square root? Yes. Did you understand? हाँ, तो इसमें गड़बड़ मत करना, यू शुड अंडरस्टैंड. और स्क्वायर रूट के लिए सिर्फ ये सिंबल होगा, क्यूब रूट के लिए you have to write a 3 here. So that means 3 indicates it is a cube. Okay, understood? All clear? Yes. तो आप और कुछ डाउट्स हैं आपको तो पूछो. नहीं मैम. Sure. एंड कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि a/1/3, तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज क्यूब रूट ऑफ a, क्योंकि a रेज टू द पावर ऑफ 1/3. अब 1/3 मतलब क्या? क्यूब रूट ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ 1/4, a रेज टू द पावर ऑफ 1/4. इसका मीनिंग क्या है? 4th पावर ऑफ a. तो इट इज 4th रूट ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ हाफ. तो इसका मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a. समझ में आ गया? और अगर ये क्यूब है, a का क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो आ जाएगा a⁻3. a का 4th रो है तो a⁻4, और स्क्वायर रूट ऑफ a मतलब a². अगर उसको a इंटू a करना है तो a². ठीक है. तो दिस इज पावर a⁻2 मीन्स ये a इंटू a होता है. बट अगर a⁻⁴ बोला है मतलब ये एक्चुअली हुआ स्क्वायर रूट ऑफ a⁻⁴ मीन्स ये 4th रूट हुआ ऑफ a, एंड 1/3 का पावर है मतलब क्यूब रूट ऑफ a. तो ये भी आप लोग लिख लो, ये मत लिखो, ये वाला लिखो. ओके. अभी मैंने सब कुछ रखा. तो a⁻⁴ ऐसे लिखो, नहीं तो मेरा हैंडराइटिंग में आप कंफ्यूज मत हो. समझ में आया? हाँ. इरेज करूं? नहीं मैम, 1 मिनट में लिख रही हूँ. हाँ. फिनिश्ड? स्क्रीनशॉट ले लो प्रिया. मैम लिख रही हूँ. अच्छा लिख. ओके.
ठीक है। तो अभी कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं वो लोग कि सपोज अभी जैसे हमने किया a रेज टू द पावर ऑफ n और a वो फुल रेज टू पावर ऑफ m, तो व्हाट इज अवर दिस a रेज टू द पावर ऑफ nm लिखो या फिर a रेज टू द पावर ऑफ mn, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब सेम बट अगर a b रेज टू द पावर ऑफ m हुआ या n हुआ तो इसका मीनिंग क्या, जैसे अभी ये मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हमको लिखना है तो आएगा a n मल्टीप्लाई बाय b n। जैसे मैंने आपको बताया ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, तो मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं दिया तो ये ए बी मतलब इट इज ए इंटू बी ओनली, तो देयरफॉर a रेज टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर ऑफ n। सेम वे फॉर डिवीजन, डिवीजन में भी ऐसा होता है अगर a अपॉन b है और ये पूरा रेज टू द पावर ऑफ n है तो इसका मीनिंग क्या है, a रेज टू द पावर ऑफ n अपॉन b रेज टू द पावर ऑफ n। हमने एक सम किया था ना वो j वाला, j रेज टू द पावर ऑफ 10 द होल अपॉन j रेज टू द पावर ऑफ 3, और फिर ये होल रेज टू द पावर ऑफ 2 हुआ तो कैसे करेंगे, पहले आप ये करोगे j रेज टू द पावर ऑफ 10 माइनस 3 इज 7, फिर ये पूरा हो जाएगा j रेज टू 2, तो आंसर आएगा j रेज टू 14। समझ में आया ना, हमने लास्ट टाइम ऐसा एक सम किया था। क्योंकि ये जो n है यहाँ पर ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो इसीलिए जब नंबर्स भी होंगे तो दोनों के लिए है, तो इंस्टेड ऑफ दोनों को हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन किया तो 7 आया और उसका स्क्वायर, तो जब इसको करेंगे तो इट विल बी j रेज टू द पावर ऑफ 14। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? Yeah. एंड इफ इट इज a रेज टू माइनस n तो आप माइनस नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन a रेज टू n। ठीक है। Yes. अब जैसे मैंने जो आपको बोला था कि अगर आपने ये रूट a लिखा है, ऐसा लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, a रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 3, तो ये क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ a, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, दिस इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ a। तो पावर में कैसे लिखेंगे, a रेज टू 1 3, जो आपने मैंने पहले आपको बताया ना, फोर्थ रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये अगर इसको हम बोलते हैं ऐसा और पावर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, so now you understood clearly? Yeah. Any doubts so that we can continue? No. Ayan? Yes, ma'am. No, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Okay. तो हम थोड़ा आपका जो ये है उसको वापस से थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये वाली वर्कशीट तो अभी की है तो इसको नहीं करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। वापस से सब वर्कशीट्स करना घर पे। ठीक है, यू हैव फ्राइडे का दिन, मीन्स आपके पास कल का एक पूरा दिन है और आज की शाम है, तो दोनों वर्कशीट्स एक एक बार देख लो और एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू करो। ये टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम था, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम था आपको, बट एक बार वापस से हर एक एक्सरसाइज में से दो दो सम करो, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे नहीं कि हाँ मुझे आता है मुझे आता है। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, ये माइनस वाले में पता है ना, अगर -6 स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या होगा, अगर -6 स्क्वायर, सो दिस विल बी -36, बट अगर ये -6 द होल स्क्वायर है तो आंसर आएगा 36, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है,
करेक्ट? यस। हाँ, तो एस्टिमेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? एंड ये पिरामिड बनाने में, पिरामिड भी आता है। पिरामिड बनाने के बाद यू हैव टू चेक योर आंसर्स कि 2 पिरामिड का नीचे का आंसर ऊपर बन रहा है ना, वो 2 ऊपर का थर्ड में बन रहा है ना, सो दैट यू विल वेरीफाई योर आंसर्स। ठीक है? अब ये 2 पिरामिड है तो इसका आंसर यह बनना चाहिए, ये 2 पिरामिड है तो इसका आंसर ये बनना चाहिए। ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई टू वेरीफाई योर आंसर्स, सो इट विल बी मोर इजी। ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रिड समझ में आया है ना? हाँ। हाँ, so if it is a multiplication like this, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर विल गिव यू आंसर हियर। ओके, तो सपोज इट इज 1 एंड हियर -2, तो आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा -2। ओके, बट सपोज अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और बोला है ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, तो सेकेंड नंबर ही फर्स्ट नंबर से माइनस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमेशा फर्स्ट लिखेंगे, तो ये 1 और ये क्या करना है माइनस, और किससे माइनस करना है -2 से। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1 + 2, तो आंसर इधर लिखोगे 3। अंडरस्टूड? डोंट डू अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग -3 आंसर या -1 आंसर। 1 minus -2, so -2 will become +2, so your answer will be 3. If here it is 4, then your answer will be 4 minus again -2, so 4 + 2, then answer is 6. But if here it is -3, so -3 minus -2, then -3 + 2, your answer will be -1. तो यहाँ पर आएगा -1। तो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। क्या दिया है इधर, माइनस दिया है और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया है क्या, और अगर डायरेक्ट दिया है तो भी 1 - -2 ही लिखोगे। ठीक है, तो जब माइनस होगा तो वो लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर देंगे, तो फर्स्ट नंबर हमेशा फर्स्ट लिखोगे और सेकंड नंबर सेकंड लिखोगे, क्योंकि सेकंड नंबर से ही फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर माइनस होता है। अगर आप 8 - 10 करते हो तो आंसर आएगा -2, बट अगर 10 - 8 करोगे तो आंसर आएगा 2। इसीलिए क्वेश्चन बराबर पढ़ना। ठीक है, समझ में आया? प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस है तो भी, अगर यहाँ पर समझो प्लस है और मैंने यहाँ पर आपको नंबर दिया है 3, 4 और यहाँ पर दिया है -2, तो आप करोगे 3 + -2, तो हमेशा ब्रैकेट में लिखो, फिर ब्रैकेट ओपन करो, इजी हो जाएगा। तो 3, दिस नंबर विल नॉट चेंज, तो -2 आंसर इज 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो ये 4 के लिए क्या करोगे, 4 + -2, सो 4 - 2 आंसर इज 2, तो यहाँ पर 2 लिखो। अगर -2 है तो कैसे करोगे, आई एम डूइंग हियर, सो -2 + -2, सो -2 आंसर हो जाएगा -4। तो बस इस पे ध्यान दो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चन समझते नहीं हो, क्वेश्चन को समझो एंड आंसर करना। ठीक है, ओके। बाकी तो अभी आपको मैंने सब रिवाइज करा दिया है, इंडाइसेस वगैरह, तो पहले का चैप्टर तो इंडाइसेस ही है। ठीक है, एनी डाउट्स सो फार? नो। तो कैन यू वाइंड अप फॉर द डे? ओके। और इसीलिए सॉल्व करो, कुछ डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी टुमारो। कोई मेरे लेक्चर में मेरे को 10-15 मिनट गैप होता है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी अप। ओके, साक्षी मैम को या काम्या मैम को बोलो मुझे ये डाउट है, मुझे शिल्पा मैम से बात करनी है, तो आपसे बात करा देगी मेरी। ठीक है, इसलिए आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे ना, तो ये आपको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो पता चलेगा। ओके, चलो, सो एक बार फिर से सब वर्कशीट एक बार देख लेना।
और एटलीस्ट दो दो सम करो तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कोई डाउट्स है तो मुझे कॉल करो. ओके, बाय 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 मैम, थैंक यू मैम. बाय. ऑल द बेस्ट. अगर कल नहीं मिले तो